ناظرین آداب، دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ ملک کے نوجوانوں کے لیے سوامی وویکانند کی تعلیمات مثالی، ملک کی تعمیر میں شراکت دار بننے وزیر اعظم کی نوجوانوں سے اپیل۔ کووڈ شیلڈ پونے سے حیدرآباد منتقل، 16 جنوری سے ریاست بھر میں ڈالے جائیں گے ٹیکے۔ کے ٹی آر نے جی ایچ ایم سی میں مفت پینے کے پانی کی اسکیم کا کیا آغاز، دونوں شہروں میں 10 لاکھ خاندانوں کو فائدہ پہنچنے کا دعویٰ۔ اور امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہنگامی صورتحال، صدر ٹرمپ نے ایمرجنسی کے جاری کیے احکامات۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کورونا ویکسین تلنگانہ ریاست کو پہنچ گئی ہے۔ ویکسین کے لیے ریاست کی عوام ایک طویل عرصے سے منتظر تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پونے شہر سے خصوصی تیاری کے ذریعے کووشیلڈ ویکسین شمس آباد ایئرپورٹ پہنچ چکی ہے۔ اس طرح 6,50,000 خوراک پر مشتمل کووڈ کے یہ ٹیکے صبح 11 بجے ریاست کو پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے کوٹھی میں واقع محکمہ ہیلتھ کے دفتر میں 40 کیوبک میٹرز ویکسین کولر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کوٹھی سے مختلف مقامات کو ویکسین منتقل کرنے کے لیے 866 کولڈ چین پوائنٹس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ 16 جنوری سے ملک بھر میں کووڈ ٹیکہ اندازی شروع ہو جائے گی۔ دوسری جانب شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے بتایا کہ پونے میں واقع سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا سے 10 خصوصی طیاروں کے ذریعے 56.5 لاکھ ویکسین کی خوراک ملک کے مختلف شہروں کو منتقل کرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایئر انڈیا، اسپائس جیٹ، انڈیگو اور گو ایئر طیاروں کے ذریعے دلی، چنئی، وجے واڑہ، گوہاٹی، شیلانگ، احمد آباد، بنگلورو، حیدرآباد، لکھنؤ، چندی گڑھ اور بھوبنیشور شہروں کو Z+ زمرے کے تحت ویکسین منتقل کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر نے گریٹر حیدرآباد کے رحمت نگر کے ایس پی آر ہلز میں مفت پینے کے پانی کی فراہمی کی اسکیم کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے مقامی مکینوں میں زیرو واٹر بل تقسیم کیے۔ افتتاحی پروگرام میں ریاستی وزراء محمود علی، پی سرینواس یادو، ملا ریڈی کے علاوہ رکن اسمبلی ایم گوپی ناتھ، میئر بی رام موہن اور سرکاری چیف سیکرٹری سومیش کمار موجود تھے۔ اس موقع پر کے ٹی آر نے کہا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات کے دوران چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے حیدرآباد کے عوام کو مفت پینے کا پانی فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور کے سی آر کا یہ وعدہ آج پورا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت فی خاندان کو ماہانہ 20,000 لیٹر پانی مفت فراہم کیا جائے گا۔ کے ٹی آر کے مطابق بستیوں میں نلوں کے میٹر کے بغیر مفت پینے کے پانی کی سربراہی عمل میں آئے گی۔ اسی طرح اپارٹمنٹس میں لازمی طور پر میٹرز کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ اپارٹمنٹ میں فی پلانٹ کو 20,000 لیٹر کے لحاظ سے 10 پلانٹس ہونے پر اپارٹمنٹ کے لیے ماہانہ 2 لاکھ لیٹر مفت پانی فراہم کیا جائے گا۔ اگر 20,000 لیٹر سے پانی استعمال کیا جاتا ہے تو پرانے چارجز کے لحاظ سے بل وصول کیا جائے گا۔ 9 లక్షల కుటుంబాలకు హైదరాబాద్ లో 20,000 లీటర్ల వరకు ఉచితంగా ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది కేవలం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క ఘనత అని సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇప్పుడే సోదరుడు గోపీనాథ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, అన్న ఒక్కసారి ఈ ప్రాంతంలో ఏమేం జరిగినాయో చుట్టూ తిరిగి చూడండి అని చెప్పినారు। ఇటు చూస్తే బస్తీ దవాఖానా, ఇక ఆ పైన చూస్తే మనం గడుతున్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇంకో నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి, అది పూర్తవుతా ఉన్నాయి। ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా వేసుకున్న ఈ రహదారి, ఎడమ వైపు చూస్తే నిలువెత్తున డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ మనందరికీ ఆశీర్వాదం ఇస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలో ఒక అద్భుతమైన ہمارے ملک ہندوستان میں تقریباً 35% آبادی نوجوانوں کی ہے۔ آج پورے ملک میں سوامی وویکانند کی 158ویں جینتی منائی جا رہی ہے۔ سوامی ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہیں جنہوں نے ملک کے تئیں نوجوانوں میں ایک جوش اور انقلاب پیدا کیا تھا۔ سوامی وویکانند کی جینتی کے موقع پر ملک میں یوم نوجوان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سوامی وویکانند 1863 عیسوی میں کولکتہ میں پیدا ہوئے اور صرف 39 سال کی زندگی بسر کرنے والے سوامی وویکانند کا نوجوانوں میں غیر متزلزل اعتماد تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ مستقل محنت، قابلیت، استقامت، تخلیقی صلاحیتوں اور وسیع نظری کے ساتھ نوجوان مرد و خواتین کو یہ صلاحیت حاصل ہوگی کہ وہ ترقی کے معاملے میں قوم کی رہنمائی کر سکیں۔
स्वामी ने नौजवानों में शौर बेदार करने के लिए उठो और आगे बढ़ो का नारा दिया था। वो हमेशा नौजवानों को अपनी मंजिल का हदफ मुकर्रर करने का मशवरा दिया करते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की सूरत हाल में जहां दहशतगर्दी और फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद बहुत ज़्यादा फैल रहा है, नौजवानों को मज़हब, सक़ाफ़त और फ़लसफ़े के बारे में स्वामी विवेकानंद की तालीमात को अमली जामा पहनाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मज़हब की यकसानियत स्वामी की तालीमात से मालूम होती है। वज़ीर आज़म ने दिल्ली के JNU में अपने खिताब के दौरान इन ख़यालात का इजहार किया। देश को विजन ऑफ वननेस के लिए प्रेरित करें, जो स्वामी जी के चिंतन की प्रेरणा रहा है। ये प्रतिमा देश को यूथ लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी की अपेक्षा रही। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के हुदूद में रेलवे लाइन से मुतल्लक़ बरक़ी के काम तेज़ी से जारी हैं। वाज़ेह है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र डीजल इंजनों को हटाते हुए बरक़ी से चलने वाले इंजनों के लिए आदिलाबाद में 250 किलोमीटर तक रेलवे लाइन से मुतल्लक़ बरक़ी के काम किए जा रहे हैं। इस मनसूबे के तहत आदिलाबाद, मुकधड़, कोरना, अकोला, परभनी, परली के दरमियान बरक़ी लाइन बिछाई जा रही है। रेलवे अहदेदारों के मुताबिक इन कामों की तकमील के बाद ट्रेनों के वक्त पर चलने के अलावा इंजनों की तब्दीली का भी मसला नहीं रहेगा। इसी तरह ट्रेनों की तादाद में भी इजाफे के इम्कानात हैं। मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम हंगामी हालात में किसानों के लिए माली तौर पर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। जयशंकर भोपालापल्ली ज़िले के चटियाल मंडल के चिल्ला गिरगी गाँव के किसानों में इस स्कीम के ताल्लुक से काफ़ी मसरत पाई जा रही है। भोपालापल्ली ज़िले के चटियाला मंडल के चिल्ला गिरगी गाँव के ज़्यादातर लोग पेशे से ज़राअत से वाबस्ता हैं। मरकजी हुकूमत ने कुदरती आफात के पेश नज़र किसानों के ताउन के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम मुतारफ़ किया है। मुल्क भर के अहल काश्तकार फसल के लिए मरकज़ से इस स्कीम के तहत माली इमदाद हासिल कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से रबी के मौसम में पहली किस्त पर 2,000 रुपये दिए जाते हैं और बाद मुख्तलिफ फसलों पर माबाक़ी रकम अदा की जाती है। चटियाल मंडल के ज़राई ऑफिसर रघुपति ने दूरदर्शन को बताया कि इस स्कीम के तहत मंडल के 5,193 काश्तकारों ने इस्तेफादा किया है। मुकामी किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। इस स्कीम के तहत मिलने वाली रकम हंगामी हालात में सूदमंद साबित हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक नए हिंदुस्तान की तामीर के हिस्से के तौर पर नौजवानों को एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने में कौमी तालीमी पॉलिसी काफ़ी अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में नौजवानों के फ़ैसलों, नज़रियात और अक़ायद पर ज़ोर दिया गया है। वज़ीर आज़म दूसरे नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के इख्तितामी प्रोग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खिताब कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर वज़ीर आज़म ने उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वामी जी ने अपनी तहरीरों और तालीमात के ज़रिए नौजवानों में कौम परस्ती के जज्बे को पैदा किया और आज़ादी पसंद नौजवान उनसे मुतासिर हुए। जारिया माह की 20 तारीख को जो बाइडेन की जानिब से अमेरिका के सदर की हैसियत से हलफ लिए जाने के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मुतवक्का हालात पेश आ रहे हैं। सदर ने मुल्क के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में एमरजेंसी नाफिज करने के अहकाम जारी किए हैं। ट्रंप का कहना है कि यह फैसला वाशिंगटन DC सिटी मेयर की जानिब से बाइडेन की हलफ बर्दारी के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज करने की सिफारिश के बाद किया गया है। दूसरी जानिब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने खबरदार किया है कि मुल्क के 50 रियासतों के सदर मुकाम पर पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आने के इम्कानात हैं। इसी तरह डेमोक्रेटिक ने ऐवान नुमाइंदगान में मुआख़ज़ा तहरीक पेश की, जिसमें ट्रंप पर कैपिटल हिल पर हमला का इल्ज़ाम आयद किया गया था। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मुल्क के नौजवानों के लिए स्वामी विवेकानंद की तालीमात मिसाली, मुल्क की तामीर में शिरकतदार बनने वज़ीर आज़म की नौजवानों से अपील। कोविड शील्ड पुणे से हैदराबाद मुंतकिल,
16 जनवरी से रियासत भर में डाले जाएंगे टीके। केटीआर ने जीएचएमसी में मुफ्त पीने के पानी की स्कीम का किया आगाज। दोनों शहरों में 10 लाख खानदानों को फायदा पहुंचने का दावा। और अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में हंगामी सूरत हाल। सदर ट्रंप ने इमरजेंसी के जारी किए अहकामात।